Hello student, today we are going to study about concentration terms in chemistry. You know that a solution is obtained by adding solute to the solvent and then solution is obtained. The amount of solute in a solution can be expressed by so many concentration terms. So they are very important let us study those concentration terms one by one. The first concentration term is molarity, which is a very important term is molarity, and its symbol is capital M. First of all, the meaning of molarity. See, molarity is the moles of solute present in the per liter of solution. That is, we can say that the molarity is given by finding out the moles of solute and divided by the volume of solution in liters. The meaning of molarity is this. That is, we are simply expressing that that in the solution of in the per liter of solution, what is the mole of solute present? We are simply expressing that. So the meaning of molarity is this. That is, moles of solute present per liter of solution is the molarity is. So we have to find out first of all the mole of solute and divide by volume of solution in liter, and that will give you the molarity of solution. तो in this way आप molarity find कर सकते हैं. For example, एक क्वेश्चन देखते हैं. Suppose a solution contain 40 gram NaOH in 200 ml of solution. So find the molarity of solution. तो अब देखिए मोलारिटी फाइंड कैसे करेंगे. वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये सल्यूट है, तो इस सल्यूट का पहले मोल्स फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, हाउ डू फाइंड द मोल्स ऑफ सल्यूट? तो यू नो द मोल्स इज गिवन बाय गिवन वेट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट. Moles is given by this. Now given weight is 40 gram and the gram molecular weight is 40 gram. So the moles of solute is given by given weight upon gram molecular weight, that is also 40, and this comes to be 1 mole. तो यहाँ पे solute का 1 mole present है और solution का volume कितना है. देखिए solution का volume यहाँ पे given है 200 ml है, तो उसको लीटर में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें पर लीटर में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं. तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में कितना है, दैट इज 200 बाय 1000, दैट इज 1/5 लीटर्स. तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और इन दिस वे नाउ हम फाइंड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन के पर लीटर में सॉल्यूट का मोल कितना है, और वी कैन अप्लाई दिस रिलेशन डायरेक्टली. तो अब बताओ व्हाट इज मोलारिटी विल बी. द मोलारिटी विल बी द मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 मोल बाय वॉल्यूम 1/5, व्हिच इज कमिंग टू बी 5. So the answer is that molarity is 5. Fine. तो molarity हम find ऐसे कर सकते हैं for any solution. और फिर लास्ट में इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं. Your final answer will be that molarity is 5m. अब फाइनली इसको एक्सप्रेस ऐसे करेंगे, then molarity is 5m, and in this way molarity can be obtained for any solution. We can obtain by this method. Fine. So the fundamental meaning of molarity is this, and we can always solve in this manner. अब इसका नेक्स्ट हम और स्टडी करते हैं, दैट इज मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड टर्म इज दैट इज अ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. सो लेट अस सॉल्व इट. लेट अस सी द मीनिंग एंड देन इनका आपस में इंटर रिलेशन देखते हैं. ओके, तो the second important concentration term is molality of solution, and इसका सिंबल है स्मॉल m. ये भी concentration term है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग, मोलालिटी को डिफाइन कैसे करते हैं. मोलालिटी इज द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट बट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट के मोल को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इट इज अ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज द मोलालिटी इज. ओके, अभी इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे. अगेन इट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड divided by the weight of solvent
weight of solvent in kg. Mind it, weight of solvent in kilograms. We have to see that. अच्छा, मोलारिटी और मोलालिटी में फंडामेंटल डिफरेंस कहाँ पर है? आपने अभी देखा मोलारिटी में सोल्यूट के मोल्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मीन्स कि हम वहाँ पे सोल्यूशन के 1 वॉल्यूम में 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है ये फाइंड कर रहे हैं. बट मोलालिटी में व्हाट वी डूइंग, आप रिलेशन देख सकते हैं और इसे फॉलो कर रहे हैं. यहाँ इसमें मोलालिटी में हम क्या फाइंड कर रहे हैं? यहाँ पे सिंपली हम ये फाइंड कर रहे हैं कि सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सोल्यूट का मोल कितना है. तो यहाँ पे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सोल्यूट के मोल एक्सप्रेस कर रहे हैं और मोलारिटी में सोल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मोल एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है. ओके, तो मोलारिटी का ये रिलेशन एप्लीकेबल है. ओके, लेट अस अप्लाई इट. बट बिफोर दैट सी द वेट ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूशन फॉर्म होता है बाय एडिंग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो आप बताओ वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी द वेट ऑफ सोल्यूट, the weight of solute plus the weight of solvent. इन दोनों में वेट को ऐड करके वेट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे. तो अगर हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है तो दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट. विल अप्लाई दिस. और सॉल्वेंट के वेट को पहले ग्राम्स में फाइंड करके फिर उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे. तो इन दिस वे सॉल्वेंट का वेट फाइंड करके हम मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं. एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपको ये फंडामेंटल मीनिंग क्वेश्चन में अप्लाई करना है. तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए, अ सॉल्यूशन कंटेन 3420 ग्राम एल्यूमिनियम सल्फेट एंड द वेट ऑफ सॉल्यूशन is 10,000 gram and the molecular weight of aluminum sulfate is 342 grams. Find molality. आपको यहाँ पे मोलालिटी फाइंड करनी है. तो let us solve it. सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आप ये सोल्यूट है, पहले सोल्यूट का मोल्स फाइंड कर लेते हैं. अच्छा, मोल्स फाइंड कैसे करते हैं? दैट इज गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिकुलर वेट. ना उसका ग्राम मॉलिकुलर वेट कितना है? दैट इज 342 ग्राम है और गिवन वेट 3420 ग्राम है. तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड कर लेते हैं. सो दैट इज कमिंग टू बी द मोल्स ऑफ सोल्यूट विल बी 3420 बाय 342. कितना आ गई? 10 मोल्स. ओके, तो पहला स्टेप ये था, 10 मोल्स फाइंड कर लिया. अच्छा, नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड नेक्स्ट? हमें सॉल्वेंट का वेट फाइंड करना है. तो सॉल्वेंट का वेट फाइंड कैसे करेंगे? आपको ये वेट ऑफ सोल्यूशन है और ये वेट ऑफ सोल्यूट है. तो सॉल्वेंट का वेट फाइंड कैसे करेंगे? वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस द वेट ऑफ सोल्यूट, सबट्रैक्ट कर लेंगे. तो आप देखो, व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट? द वेट ऑफ सॉल्वेंट कम्स टू बी वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस द वेट ऑफ सोल्यूट. इनको सबट्रैक्ट कर लिया तो इससे वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे. तो दिस कम्स टू बी 5580 ग्राम. दिस कम्स टू बी दैट. तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है बट इसको हमें किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है. तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे एंड दिस कम्स टू बी 5.58 किलोग्राम्स. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया. और वंस हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लिया, नाउ फाइनली मोलालिटी फाइंड कैसे करेंगे? That is a mole of solute by the weight of solvent, but in kg. So take care of that. So finally, what is the molality will be? The molality will be the mole of solute is 10 by the weight of solvent is 5.58. और इसको solve कर लेंगे, ये 1 point something आ जाएगा. So molality find ऐसे करते हैं. तो आप देखो, ये दो टर्म हाईली इंपॉर्टेंट है, मोलारिटी एंड मोलालिटी, और इससे हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. फाइन, आपने फंडामेंटल मीनिंग अंडरस्टैंड करा और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यू सी दैट, और ये रिलेशन में प्रॉपर्ली अप्लाई करनी है. अच्छा, एक कन्वर्जन करते हैं. लेट अस कन्वर्ट मोलारिटी इनटू मोलालिटी. लेट अस सी द फंडामेंटल स्टेप ऑफ दैट, कि अगर आपको मोलारिटी गिवन है तो उसको मोलालिटी में चेंज कैसे करते हैं. लेट अस सी दैट बाय वन एग्जांपल. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी इनटू मोलालिटी. लेट अस सी दैट. Okay, conversion of
मोलारिटी इंटू मोलालिटी मीन्स आपको इसमें बस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आपको मोलारिटी गिवन है और उसको मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन इज m/10 HCl एंड डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी रिक्वायर्ड होगा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। फाइंड मोलारिटी, दैट्स द क्वेश्चन इज। नाउ इस क्वेश्चन को हम सिंपली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। ओके, और डेंसिटी इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि हम इससे मास फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको मोलारिटी गिवन है, हाउ मच, दैट इज m/10। नाउ इसको पहले इंटरप्रेट करेंगे। नाउ हाउ डू वी इंटरप्रेट दिस? देखिए मोलारिटी इज m/10, मोलारिटी इज इक्वल टू m/10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। कैसे इंटरप्रेट करेंगे? मींस देखिए आपने अभी स्टार्ट में देखा था मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अप्लाई द फंडामेंटल मीनिंग, इट इज मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो m/10 को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? मींस 1/10 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको एक्सप्रेस ऐसे नहीं करेंगे कि 1 मोल आर प्रेजेंट इन 10 लीटर, नो, ये क्योंकि ये मोल्स पर लीटर होता है। तो 1/10 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट्स फंडामेंटल मीनिंग इज दैट, देखिए 1/10 मोल्स of solute, that is HCl, are present in 1 liter of solution। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले से इंटरप्रेट कर लेंगे। और सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है तो उसको ml में चेंज कर लेंगे। हाउ मच? इट इज 1000 ml, 1000 ml। तो वी इंटरप्रेट लाइक दैट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, हमें मोलालिटी फाइंड करनी है। अच्छा, आप देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है कितना, 1.2 ग्राम पर ml है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है कितना, 1000 ml है। एंड यू आल्सो नो दैट डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। अप्लाई दिस रिलेशन, डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये रिलेशन अप्लाई करके हम यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वी कैन अप्लाई दिस। नाउ डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम 1000 ml है। तो हम इससे मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कितना आएगा? देखिए 1.2 इंटू 1000 एंड दिस कम्स टू बी 1200 ग्राम। ये तो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। बट मोलालिटी फाइंड करने के लिए व्हाट यू नीड द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब वो फाइंड कैसे करेंगे? उसके लिए मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको मोल्स गिवन है कितना, आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट है कितना, 1/10 है। तो ये जो मोल्स ऑफ सोल्यूट 1/10 गिवन है, इसको हम मास में चेंज कर सकते हैं। अभी आपने स्टार्ट में देखा कि मोल्स फाइंड कैसे करते हैं। आपको मोल्स इज गिवन बाय गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। और HCl का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5 ग्राम है। तो हम इससे मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। अप्लाई दिस रिलेशन, सी द मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मोल्स कितना है? आपका मोल्स 1/10 है, इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 36.5 है। सो दिस कम्स टू बी 3.65 ग्राम। ये मास ऑफ सोल्यूट है। तो वंस हमने मास ऑफ सोल्यूट भी फाइंड कर लिया एंड मास ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर लिया, नाउ सोल्यूशन में इसको सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमें मोलालिटी फाइंड करना है। तो अब बताओ व्हाट इज मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी? द मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी द मास ऑफ सोल्यूशन माइनस द मास ऑफ सोल्यूट, 3.65 ग्राम। ये माइनस कर लेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम कर लेते हैं। आपने इसकी जो वैल्यू आएगी इसको माइनस कर लेंगे, तो दिस कम्स टू बी 1196.45.35 ग्राम। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। और अभी आपने स्टार्ट में देखा कि मोलालिटी फाइंड करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में एक्सप्रेस करना है, बट ये ग्राम में है। तो किलोग्राम में चेंज कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे
तो दिस कम्स टू बी 1.196 kg, ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो आप देखो ना, आपको बस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूज करना है, नॉट एनी सिग्निफिकेंट फॉर्मूला, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। मतलब आपको पहले मोलारिटी को डिफाइन करना है, इंटरप्रेट करना है, और एक फंडामेंटल मीनिंग अप्लाई करना है, और देन उसको ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, वंस एक बार मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, अब हम मोलारिटी फाइंड कर लेंगे। हाउ डू वी ऑब्टेन दैट? मोलारिटी इज द मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, सोल्यूट का मोल कितना है? 1/10 है। तो अब देखिए, मोलारिटी इज गिवन बाय 1/10 मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज 1.196। इट इज 1 अपॉन कितना आएगा? 11.96। ये आ जाएगा, ये मोलारिटी है, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो मोलारिटी फाइंड ऐसे कर सकते हैं, फ्रॉम मोलारिटी द फंडामेंटल मीनिंग इज दिस। फाइन, आई थिंक आपने देखा कि इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, बट एक डायरेक्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन दिस वे मोलारिटी और मोलारिटी फाइंड ऐसे करेंगे, और उनका आपस में कन्वर्जन ऐसे करेंगे। सिमिलरली हम मोलारिटी को मोलारिटी में चेंज कर लेंगे, उनका फंडामेंटल मीनिंग अप्लाई करके उस मोलारिटी को मोलारिटी में भी चेंज कर सकते हैं। सो दीज टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव सीन दीज टू कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स व्हिच आर हाईली इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट टू टर्म्स आर आल्सो देयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेट अस सी दैट मोल फ्रैक्शन एक्सप्रेस कैसे करते हैं और इसे फाइंड कैसे करते हैं। Okay, the third important term is mole fraction, और इसका सिंबल ग्रीक सिंबल है। दैट सिंबल इज वी शो बाय दिस सिंबल, एंड द सिंबल इज प्रोनाउंस्ड एज काई, CHI काई, मोल फ्रैक्शन। तो आपको नेम से इंडिकेट हो रहा है, मोल फ्रैक्शन मींस ये सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल का फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, इसको फाइंड कैसे करते हैं? मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो of the moles of any component by total mole of solution is the mole fraction। मतलब आपको moles of, जैसे सोल्यूट है तो मोल ऑफ सोल्यूट को टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करना है, और इससे मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हाउ डू वी गेट दैट? तो इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट? ऑफ द मोल ऑफ सोल्यूट बाय द टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन। एंड टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे? सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो उनके मोल का सम कर लेंगे। तो बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा? दैट बाय मोल ऑफ सोल्यूट प्लस द मोल ऑफ सॉल्वेंट विच गिव्स यू द मोल ऑफ सोल्यूशन। तो अब देखा, बस आपको करना क्या है, आपको सोल्यूट के मोल्स को सोल्यूशन के मोल से डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड ऐसे करेंगे, एंड what about the mole fraction of solvent? Apply the same meaning. How do we get it? इसके लिए मोल ऑफ सॉल्वेंट को सोल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइड करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेंगे। तो अब देखो, इट इज अ मोल ऑफ सॉल्वेंट, द मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल ऑफ सोल्यूशन विच इज द मोल ऑफ सोल्यूट प्लस द मोल ऑफ सॉल्वेंट। इससे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट फाइंड कर लेंगे। सो मोल फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग ये है, और इससे हम दोनों के मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक बार आप देखो, अगर हम इन दोनों को सम करें, मींस द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इनका सम कर लें, तो अब तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप सम करेंगे तो आप देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। सी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अब इनको हम सम कर रहे हैं तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा द मोल ऑफ सोल्यूट प्लस द मोल ऑफ सॉल्वेंट, एंड न्यूमरेटर में भी क्या आएगा? द मोल ऑफ सोल्यूट प्लस द मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये आएगा और ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू देखिए 1 आएगी। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है, फॉर एनी सोल्यूशन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट नोन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी 1 माइनस द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इससे फाइंड कर लेंगे। ओके, तो मोल फ्रैक्शन का ये फंडामेंटल मीनिंग है, और इसे फाइंड हम ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन सिंबल देखते हैं, इसको कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक सोल्यूशन है जिसमें
सपोज वी हैव गॉट 1110 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड in 9000 ग्राम वाटर। यहाँ पे सल्यूट कैल्शियम क्लोराइड है और सॉल्वेंट वाटर है, तो इन दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करनी है। ओके अच्छा, इसका CaCl2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 111 और वाटर का 18 है, तो हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कैसे करेंगे? पहले सबके मोल्स निकाल लेते हैं। व्हाट इज द मोल ऑफ CaCl2? दैट इज, हाउ डू गेट दैट? गिवन वेट अपॉन द गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना आएगा? ये 10 मोल्स। और मोल द मोल ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट कितना आएगा 9000 बाई 18 कितना आएगा? ये आएगा 500। दोनों के मोल्स आ गए। अच्छा एक बार दोनों के मोल्स आ गए तो हम टोटल मोल्स निकाल लेंगे। व्हाट इज टोटल मोल्स कमिंग? टोटल मोल विल बी हाउ मच? 10 प्लस 500 कितना? 510। ये टोटल मोल्स आ गया। और एक बार टोटल मोल्स आ गया फिर हम मोल्स फ्रैक्शन निकाल लेंगे। कैसे करते हैं? बाय द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब बताओ व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? फाइनली कितना आएगा? सॉल्यूट का मोल कितना है 10 बाय 510, दैट इज 1/51। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ गया। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे करेंगे? या तो 1 से माइनस कर लें या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। सॉल्वेंट का मोल कितना है? सॉल्वेंट का मोल है अभी हम निकाला 500, तो दैट वुड बी कितना? 500 बाई 510 और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दिस वे मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। वी कैन डू दैट। फाइन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट टर्म है जिनको हम ऐसे अप्लाई करके इनका फिर एप्लीकेशन कर सकते हैं। फाइन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।